थोड़ी देर बाद ये डांस मूड में चले जाती हूँ. काला चश्मा. I wish I can pull the moves that Katrina can pull. I mean, she takes a song seriously, but I think, I mean, we have Madhuri Dixit and top-notch dancers in the industry. लेकिन the moves, the way Katrina pulls it, the way her body moves, जो swave करती है, I don't think nobody in the industry can do it that well. बट चले अब डांस से जरा कहते नचन वाले दी अड्डी ना रहिंदी ते गाउण वाले दा मुंह. बोली तो मैं पानी नहीं, सिर्फ मैं क्वेश्चनिंग कर सकती हाँ. जो साढ़े गेस्ट है आज दे, जो हमारे आज के गेस्ट हैं हमारे साथ, वो शामिल हुए हैं. वो सिंगर भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं, एंड दे आर होल्डिंग एन इवेंट. सो लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सो उनके साथ डिस्कस करते हैं. सो वेलकम टू द शो. Thank you, Kavita ji. So we have Pankaj and Riaz, right? I got it right. Pankaj and Riaz are with us. So welcome. And so अब बताएं पहले अपने बारे में से. So you're both singers basically, and you have you're professionals as well. So to begin, I would like to thank Y Media for giving us this opportunity to come to your studio and discuss our program. And talking about myself, I'm a financial advisor with Sun Life for last 15 years in Canada. And Riaz is actually a realtor himself. And we initially got in touch. I got in touch with him as a client, and we had a mutual interest music. काफ़ी लोग music से interested होते हैं और आपस में मिलते हैं, तो उसी तरह हमारी मुलाकात हुई. And then the two of us got together. We set the foundation of this organization, IMKG, Indian Music Karaoke Group. और हम लोगों ने इसको शुरू किया था मेरे घर की बेसमेंट से in 2009. And it's come a long way since then. और हमारे पास आज ओवर 500 मेंबर्स से ज़्यादा हो गए हैं. एंड मेंबर्स हैव जॉइंड अस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, ऑल म्यूजिक एंथुसियास्ट्स. और हम ट्राई करते हैं कि मंथ में एक बार हम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो दे कैन कम एंड शोकेस देयर टैलेंट. सो अबाउट 40 to 50 people show up on those monthly events. And then they show up their talent, and उस तरह से हमने काफ़ी लोगों को प्रमोट किया. Many of our singers have found a way into cutting their own albums, and they have made it to professional singing scenario. I myself was very actively involved about a decade ago with the music scene across GTA. But then because of work responsibilities, we pulled it. And there are a lot of professionals like that who have this passion, but because of responsibilities, they are not able to take it forward. तो ये ग्रुप हमने उस मकसद या उस इंटेंशन से हमने शुरू किया था. And it's just worked wonders for us. I don't know if Riaz would like to add a word here and there. No, I think Pankaj bhai summed it up very nicely. It's the same thing. मैं पंकज भाई is a great singer. मैं सुनने ज़्यादा पसंद करता हूँ. मैं गुनगुनाता हूँ more like a bathroom singer. लेकिन अच्छा, वहाँ पे उनको आप लोगों को वो शावर वावर तो नहीं अरेंज कराना पड़ता जी, that's a very funny way of putting it across. But yeah, काफी सारे singers थे ऐसे जिनको, because they saw other people, and we have whole range of singers from amateurs to mid-range to professionals. So एक common non-intrusive harmless platform मिलता है. तो काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुनते थे बैठ के, लेकिन अब धीरे-धीरे उनका motivation बढ़ गया, तो they have come on the front as well. So they have started singing. So because you are right, ये होता है कि very few times you have that कि you are singing but that confidence कि हाँ मुझे आगे जाके गाना भी है. So most of the people that I see are very shy, and their shy is their personality also. So it's good when you have similar format also. एक कोई ऐसा platform मिल जाता तो lot of people then can get the encouragement to start singing also. Sure, right? I'll add up to that कि हमारी youngest जो member है, she's 7-year-old. And then we have oldest who is just turned 72. So wow. So this is a 7 whole. से 70 तक. जी बिल्कुल. ये सही है. Thank you so much, Kavita ji. Good. ये तो अच्छा है because youngsters को भी अगर वो टाइम पे they start जैसे रियाज करना शुरू कर दे. रियाज आपने रियाज करवाना शुरुआत कर दिया, वो गुड. तो वो अच्छा है बिकॉज उनका भी कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा. यू नो सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आर वेरी हाई एंड कि उसमें फिर टू मच भी कई बारी हो जाता है. लाइक देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स, जैसे जो सारे गामा या कुछ है, उसके लिए इज अ लॉट ऑफ यू नीड यू नो कमिटमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, राइट? So I think something like a platform like yours is a midway. So the people are getting the platform, लेकिन इतना भी नहीं है कि पेरेंट्स को दिन रात वो करना पड़ रहे, लेकिन साथ साथ में बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है. It's not so stressful जैसा आपने rightly put it. Exactly. It becomes a lot of it's a lot of stress for the parents के बच्चों को ले जाओ, practice पे ले जाओ, rehearsals पे ले जाओ. बिल्कुल. It's a very casual environment. We meet,
we joke and then we sing. Yeah, So yeah. that gives the confidence to all the budding singers. There is so much hidden talent all across. That's right. Especially in India, तो अभी आप देखो लाखों में लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, बहुत बेहतर सिंगर्स हैं जो एग्जिस्टिंग सिंगर्स हैं उनसे बेहतर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द लक हैज़ नॉट स्ट्रक फॉर देम येट. That's right. So it takes a little while, and fortunately for us, because GTA is not such a big market, और हमारे पास के singers they've gone and done well. North America के अंदर across North America they are doing very well. We have real professional singers who have taken up singing as a career. For example, we've got a gentleman by the name of Jay Solanki who's doing really well across North America. He came here and he started with us. He has been a Saregama participant back home, and he's doing really well. So That's good. it's doing well. It's a very harmless environment. No competition, nothing like that. पता है कि you need that sometimes. जी. जैसे ये होता है ना कि हम लोग स्ट्रेस होता है ना कि जब when we are even पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे for instance when we are stressed कि हमें आंसर चाहिए किसी प्रॉब्लम का at work also, जी. we will never get to it. When we chill out and we relax and we have fun, the solution comes. Exactly. तो इवन टैलेंट में भी जब हम अपने पे इतना स्ट्रेस डाल देते हैं ना, या बच्चों पे भी खुद पे कि हमें ये करना है, सक्सीड करना है, हमें वहाँ पहुँचना है, सो इट बिकम्स अ पेन इन लाइफ एंड देन यू कैंट. एंड अगर आप फन तरीके में यू आर एंजॉइंग सिंगिंग फॉर द हेक ऑफ इट, और कई बार फन तरीके में करते करते आपका कई बार कोई बन जाता है, अपॉर्चुनिटी आ जाती है, यू फील लाइक दैट आई एम एट अ लेवल नाउ, आई एम रेडी टू हैव अ सीडी और समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज आई थिंक द राइट वे टू गो, दैट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग अबाउट टू मच. एंड सो वो ये इकट्ठे, और वैसे भी एक सोशल गैदरिंग भी हो गई है ना, इकट्ठे फन हो गया, पार्टी वार्टी हो गई, एक दूसरे से मजाक मस्ती भी, जोक वगैरह भी किया, सो दिस इज वेरी गुड. लेकिन आपने इसके साथ साथ में आई थिंक यू हैव टेकन इट टू अनदर लेवल ऑल्सो, दैट यू आर होस्टिंग एन इवेंट ऑल्सो कमिंग अप वेरी सून. That's right. जी कविता जी, with two of us, there are another two organizers. One is a pediatrician. He works at Markham Stouffville Hospital. Mr. Navneet Sharma. He's Dr. Navneet Sharma. And he has a passion of music. And then we also had another organizer by the name of Mr. Mutahir Jamil. He's from Pakistan. And he owns a big production house back home. He has a few dramas and serials and modeling assignments to his credit. And he was very good with hands-on operations. So all four of us had been thinking about this concept to give our singers or our performers a stage to showcase their talent. And it was in building for a long time, and finally we thought that let's get and work towards it. So the four of us brainstormed and we created this event which is known as Sama Hai Suhana. और ये होने जा रहा है August 7th, ये coming Sunday को, from 3:30 to 7:30. It's being held at the very prestigious Fairview Library Theatre. It's right behind Fairview Mall on 404 and 401 से accessible काफ़ी and a whole lot of people have shown interest. So we had kept a modest ticket of $10 and we had some very, very encouraging sponsors who took up the event and they have promoted the event taking their own responsibility. Our performers and their relatives have shown interest, and we were very actually successful to sell off the show very quickly. And there's only few seats left. We have tried to also provide some free tickets to some seniors as well, so that they could come and relax. Like at the beginning of your show you mentioned how stressful life is here. So music is one thing that can calm your nerves. हालांकि आज का जो thumping music है, हम लोग सब डांस भी करते हैं, it can actually keep you very hyperactive also. But yes, music is generally associated with calming you down, and that's where this event is. So we have actually provided a platform to our good and budding singers to showcase their talent through this show. अच्छा, so August 7th को 3:30 और Fairview Mall के पीछे Fairview Library Theatre. Fairview Library Theatre में है. Okay. So समा है सुहाना. जी, that's the name. So yeah, आप लोग जाइए ज़रूर, because इससे सुहाना क्या हो सकता है? संडे की शाम है, it is relaxed, next day work भी है, but it is a very good time. और relax में आप लोगों से कोई काम नहीं करना, सिर्फ बैठ के सुनना है, तो आप enjoy करें. So it will be a very fun interesting event. और इतनी अच्छी आवाज़ें मैंने कुछ कई लोगों की तो सुनी हुई, आवाज़ों से मुझे याद आया, एक दोनों प्लीज़ हो जाए, थोड़ा सा कोई गीत, कोई मुखड़ा कोई सुनाए. हमारे जो ऑडियंसेस है, दे लव
these songs. So please सुनाएं. Thank you Kavita ji. Like being the organizer, कोई गाने को बोले तो we can't resist. And to be honest, आज बहुत मुबारक दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है. Because the legend of Indian playback, Mr. किशोर कुमार का आज 87th birth anniversary मनाया जा रहा है all over the world. Oh really? And if he was alive today, he would have been 87 years old. Wow. So, but his voice is still alive and his songs are kicking and इतनी रेंज के songs उन्होंने गाए हैं कि आज भी इतने सालों के बाद his songs are so popular. Oh yeah. And we also just passed the 26th death anniversary of another big legend. ये वो लोग हैं जो they are not less than gods of playback singing. श्री मोहम्मद रफ़ी साहब. उनकी डेथ एनिवर्सरी 31 जुलाई को भी गई है. So it's his 26th death anniversary. So I'll do a little bit of pieces for giving as a tribute to both these singers. Please, definitely. किशोर साहब की जो रेंज थी, it was quite diverse. So एक दर्द भरे गाने से मैं शुरू करता हूँ. दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे. एक तरफ उन्होंने ये गाया और दूसरी तरफ तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसमें है दम यार, ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं, हम जो सोचें जो चाहें वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें. क्या बात. अरे वाह. Thank you so much. Perfect, that's really nice. बिल्कुल आपने किशोर दा की तो सच में याद दिला दी. उनके तो जो मस्ती भरे मजाक और वो जो छेड़खानी गाने में उनके चलते हैं, एक लड़की भीगी भागी सी मेरे सामने वाली खिड़की में, और ये गाने ऐसे तो अगर अगस्त 7th को भी होंगे तो मजा ही आ जाएगा सच में. It will be a lot of fun. रियाज जी आपकी no more रियाज and now singing. मैं बस एक लाइन, आजकल थोड़ा सा रिसेंट गाना है जी. पंकज भाई जितनी रेंज मेरी नहीं है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा. गाने का शौक हर आदमी को होता है, मौका मिलता नहीं कई लोगों को. मुझे भी बहुत दिल होता है. तो सुनो ना संगे मर मर की ये मीनारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से मैं दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा, सुनो न संगे मर मर की ये मीनारें. Thank you very much. That is good. I am really happy that you got to practice here and you got that format also. And so you've been going on for a couple of years now, and like you said आपके तो 500 members भी हो चुके हैं. तो बढ़ रहे हैं. I think ऐसे pretty going further है ना. जी हाँ, almost हम देखते हैं वीक में हमको notifications आ जाती हैं ईमेल से. So 4 or 5 people have joined, and कई बार हम अपने members का qualification देखते हैं. They have been learning music since 7 years old. कोई हिंदुस्तानी classical, कोई Carnatic music, and these are people from diverse faiths, diverse backgrounds, diverse regions. From north, east, west, south, not only India, but wherever Indian music gets promoted, Southeast Asia, Pakistan, Bangladesh, Nepal, we have members from all over. And of late, we have seen for last 4 years that there are a whole lot of non-ethnic people also joining the group actually. Oh, really? And they introduce themselves that I play guitar and I just love Indian music, but I don't sing myself, but I want to be a member of this group, and we approve them, and as I said, kids. That must be interesting actually. और उनका भी, because when they sing in their own style वो भी बड़ा cute सा लगता है. वो like जा रहा है वक्त गुजरता है, लोग उनको मुंह क्यों नहीं देख रहे होते हैं. But it's cute, right? And it's nice when you see the other cultures appreciating your own culture, right? Sure, please. तो वही हम लोग actually बात कर रहे थे उस दिन actually जब when we were talking the other day, कि थोड़ा सा जब हम लोग जैसे आपने भी गाना शुरू किया पर बाद में बीच में वो नहीं हुआ कि कई बार हम लोग जब थोड़ा स्टेज पे जाते हैं तो वो जो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि that it gets a bit, तो मेरा दिल कर रहा था कि इस बात को भी डिस्कस किया जाए. बिल्कुल. It is very important कि जैसे हमारे सिंगर्स हैं कि आप IT प्रोफेशनल हैं, right? I mean you're a finance advisor.
organizer. And on the other side, you know, you're a realtor, so everybody is from very good families and very good professions. पर कई बार हमारे जैसे कहते हैं कि स्टेज पे जाते हैं कुछ होते हैं तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो कई बार बात करने के टाइम पे थोड़ा लहजा उनका थोड़ा फनी सा हो जाता है, जैसे हम फनी ही यूज करेंगे अब ऐसा ये है वो है थिंग्स लाइक दैट। तो यही भी मतलब जैसे है ना, आई वांटेड टू डिस्कस व्हाट्स योर थॉट्स वर ऑन दिस। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कविता जी। यू नो, एज एन ऑर्गेनाइजर या एज अ परफॉर्मर, अ पर्सन गोज थ्रू अ होल लॉट बिफोर यू नो कमिंग अप एंड स्टैंडिंग ऑन दैट स्टेज। सो कई बार क्या होता है कि नॉट मोस्ट पीपल गिव रेस्पेक्ट टू आर्टिस्ट, बट ठीक है कई बार ऐसा होता है कि वी फाइंड सम पीपल दैट दे आर नॉट रेस्पेक्टेबल इनफ। सो आई ऑलवेज रिकमेंड दैट कि भाई यू नो देयर इज आर्टिस्ट हैज कम, सो यू नो गिव हिम दैट टाइम, because who knows how many years it has taken in making to be where he is standing today. So you know कई बार होता है कि everybody has his good and bad day। कई बार एक बहुत अच्छा सिंगर होता है, उसका शायद वो दिन नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है, बट गिवन अ थॉट दैट कि शायद नेक्स्ट टाइम अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिली, शायद देयर कुड बी, बिकॉज एवरीवन हैज दिस गुड डे बैड डे। अच्छे अच्छे बैट्समैन, हम क्रिकेट की बात करते हैं बिकॉज इंडिया से आए हैं यहाँ, चाहे हॉकी की बात कर लें, देयर आर बेटर प्लेयर्स, सॉकर की बात हो जाए, सर्टन बेस्ट परफॉर्मर्स कैन परफॉर्म ऑन अ सर्टन डे, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। बट यू नो आई वुड रिक्वेस्ट वन एंड ऑल टू प्रॉब्ली गो आउट एंड सपोर्ट लोकल टैलेंट, या जो भी इस तरह का जो टैलेंट आपको दिखता है, प्लीज सपोर्ट देम, इट विल गो अ लॉन्ग वे। And hopefully, you know, that person could be very thankful to you for giving that देखो support. जैसे हम लोग अपने बच्चों को किसी भी फील्ड में डाल रहे हैं, कुछ है एम्पैथी इन लाइफ इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। कुछ भी करें कि आप अपना एग्जाम्पल में उसको डाल लें, चाहे आपको सिंगर के साथ आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो आप ये सोचे कि बच्चे को किसी क्लास के लिए लेके गए हैं, या आपने कोई चीज़ बना के किसी के आगे रखी कि ये क्या बनाया है कि बनाया हैगा, राइट? ऐसी कोई चीज़ हो, जो ये होता है कि कोई गा रहा है तो लोग दबड़ 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 लगे होते हैं, ये वो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं तो सिंगर खुद नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत होता था कि उसने इतनी मेहनत का, जैसे आपने कहा कि क्या पता कितनी मेहनत उसने करी। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी स्टैंडिंग ऑन द स्टेज और सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है एंड यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म अ लिटिल बिट ऑफ, अगर हम रिस्पेक्ट और थोड़ा सा कंसिडरेशन लाइफ में एक दूसरे के लिए शो कर देना तो इट विल गो अ लॉन्ग वे। आप उस टाइम पे नहीं, किसी और तरीके से द रिस्पेक्ट इज गोना कम योर वे व्हेन यू शो रिस्पेक्ट, राइट? कि आपने किसी के लिए कुछ कुक करा है, किसी को बुलाया है, या कैसे भी लाइफ में आपने करा है, सो इट गोज अ लॉन्ग वे। सो इफ आई वुड जस्ट रिकमेंड एवरीवन टू पे हीड टू दैट एंड और पे अटेंशन के साथ इस बात पे भी अटेंशन देनी पड़ रही है कि हमारे अभी टाइम हो गया है ब्रेक लेने का तो हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गीत की बातें कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी साथ में कुछ रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, हम्बल सी रिक्वेस्ट, कुछ बातें आप सबके साथ शेयर कर रहे थे, जो मन की बातें हैं, जो महसूस करते हैं आप, यू नो लेट अस नो आपको क्या लगा। साउथ एशियन डेली फेसबुक पे है, southasiandaily.com, इट्स ऑन फेसबुक, तो आप फेसबुक पे हमें ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे आपको भी ऐसा कोई मसला, आपको ऐसी कोई सिचुएशन लगती है तो यू कैन टॉक टू अस अबाउट दैट। एंड आपको लगे कि हाँ सिंगर्स की तरफ से आपको कोई वो ऐसा है, या there is a feeling that you want to convey a message to them, we're always there, we are right here to serve you। ये तो एयर इंडिया की ऐड लग रही है मुझे एयर इंडिया वाली टोपी वो भी चाहिए इस टाइम पे। बट एनीवेज आई विल गेट बैक टू माय गेस्ट और इनके साथ और बातें करते हैं। इनके साथ बातों के साथ करते करते मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ रही थी कि मियाँ बीवी और शादी की टकरार। सो दोनों आप लोग तो मैरिड हो, राइट? सो मुबारक देनी चाहिए कि नहीं? I was also reading it somewhere कि भले हम बीवियों का जितना मजाक उड़ा लें, how much ever fun we make of them, but मुसीबत में साथ भी वही देती है। Oh, 100%. So there are jokes that will keep on coming, and you know fun would always be made. Exactly. But at the end of the day, you know she's the one who will support you in your bad times, and she stand by you in your good times. And family is paramount. So that's why we make it sure that during our events also, we make it a family event. So there are certain people, they volunteer to bring in some food, though light snacks are being served in our monthly meetups. So it becomes a very homely environment. So that's nice. You know kids also come, so they hang around, they make friends amongst themselves, families make friends amongst themselves. So it serves two purposes. You know music तो होता ही है, which is the center point of our meetup, बट साथ ही साथ ये सोशलाइजिंग एक सेकेंडरी एस्पेक्ट मिलता है। बिल्कुल, साथ में जैसे आपने कहा कि
हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे जा सकते हैं, फैमिलीज इकट्ठे जा सकते हैं. लॉट ऑफ टाइम्स ये हो जाता है कि कई बार एक पार्टनर का इंटरेस्ट अकेले, देन द पार्टनर फील्स कि आप अकेले जा रहे हो, राइट. हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि लेडी भी जो सिंगर है तो वो कह रहे हैं कि तुम अगर जा रहे हो तो हमारे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे, राइट. तो यहाँ पे अगर इकट्ठा फैमिली के साथ आ जाते थे, विच इज अ गुड थिंग, बट यू नीड द इनकरेजमेंट ऑफ योर पार्टनर एज वेल, राइट. कि अगर आपने जाना है कहीं पे, सॉन्ग्स हैं कि आपकी कोई परफॉर्मेंसेज हैं, इफ योर पार्टनर इज नॉट इनकरेजिंग, इफ योर पार्टनर इज नॉट देयर हेल्पिंग यू आउट, यू कैंट रियली बी योर बेस्ट. आपके पीछे एक नॉइंग सा वो रहेगा कि आप something is not right. और जब एक वो पीछे से मिलती है ना full support, then you're like okay, I can't agree with you more than this. Yeah. बिल्कुल. So एक पहले तो गीत हो जाए, one more song and before we move forward with the rest of the evening, rest of the morning, I mean not evening. मैं बस before पंकज भाई sings those lines, मैं आपने बिल्कुल सही बात कही बीवियों के बारे में, और पंकज भाई summed it up very nicely. I think हमारे बीवियों के सपोर्ट के बगैर we would not have been here where we are right now. So I definitely want to thank my wife. I'm sure Tejal Bhabhi, Pankaj Bhai's wife, Upasna Bhabhi, Fauzia Bhabhi, and also all the other fabulous lady singers who we have. I mean, it takes guts for the ladies to come out of the homes, come to these events, support us, sing with us, and enjoy, have a nice time. And as we all discussed, even in the daily rut, in the daily stressful lives, it gives them some time to get off their daily chores and come out and have a nice time. Yeah. So I leave it at that, and I really am thankful, first of all, to you and to the Y Media team here. And again, I'll pass it on to Pankaj Bhai to sing the lines for us. No, that's excellent nice, that you said that. That is very true, because it isn't easy for women, right, in the sense. And but thanks to their husbands, जो अपनी वाइफ को रोकते नहीं है, कि उनका शौक है, क्योंकि गाने के साथ म्यूजिक इज कम्स फ्रॉम द सोल, इट सूट्स द सोल. तो वो जो गाने के साथ एक स्ट्रेस भी एक वो होता है, एंड इट इज़ रियली स्पिरिचुअल, इट इज़ रियली हीलिंग. ये कि आप किसी और भी मूड में बैठे हैं, तो अगर आप गाना गा रहे हो तो आई थिंक इट रियली fixes your mood in every which way, isn't it? So it's good that you guys provide that, and back to you for the Gana. Sure. Last time I missed out Rafi Sahab, so I'll definitely give a fitting tribute to him. हम Y Media के स्टूडियो में काफ़ी दूर से आए हैं, so I'll use Rafi Sahab's 2 lines to say, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं. And using the words of my guru Kishore Kumar Sahab, he used to say कि अब कुछ एक छलांग मारते हैं और कुछ साल आगे आ जाते हैं. So there is a movie that is releasing next Friday, Rustam. It's a much awaited movie. It's based on true events. Yeah. So I'll do 2 lines of this song from this movie. For sure. तेरे बिन यारा खुश रंग बहारा, तू दीवानी मैं जर्द सितारा. Thank you. Wow, very nice, very nice. मज़ा आ गया. बड़ी सुहानी है ये तो. आई कैन इमेजिन हमारी मॉर्निंग सुहानी हो गई, तो वो जो अगस्त 7 की शाम तो और भी सुहानी होने वाली है. तो एक बार फिर से मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, अगस्त 7 को 3:30 बजे फेयरव्यू लाइब्रेरी थिएटर के अंदर ये शो, ये समा सुहाना बनने वाला है. और जाइए, इनके साथ शामिल होइए. हैव अ वंडरफुल इवनिंग. एंड हमारे वाई मीडिया के भी हम लोग पहुंचे होंगे, कोई ना कोई तो पहुंचे होंगे. वी विल डेफिनेटली एंजॉय दैट. एंड love to have you all. Oh, thank you so much. This is great that you guys do that. तो आपने पहले जो गाना गाया था कि बना लो, अपना लो या ठुकरा लो, तो ये आपने ये गाना गा के अपनी वाइफ को मना पटाया था. जी, मैं एक्चुअली मेरी वाइफ गुजरात से और मैं एमपी से, तो बड़ी दूर से मैं आया था उनको मनाने के लिए. तो it goes in 2 ways, yes. But yeah, Rafi Sahab has given such gems over the years, and you know, their whole, if we sit and
start singing all these songs, it might take us, you know, decades together to finish all the songs, and still we would not be done. So उनके तो वो मतलब उनके जो सिंगिंग की का टैलेंट को आप एक म्यूजिशियन या एक सिंगर कह के तो छोटा कहने वाली बात है, राइट? वो तो जैसे कोई किसी पंजाबी च कहते कोई मेयर होंगी है ना ऊपर दी ते तां ही इस तरह दी तभी इस तरह की आवाज़ हो सकती है उनकी, लता जी की, ये कोई और या उस टाइम पे जब वो लोग पुराने टाइम पे जब हमारे म्यूजिशियंस भी होते थे तो वो कला अलग ही होती थी कि जिसमें वो कह रहे थे कि तानसेन है जिन्होंने दिया जला दिया था या कुछ था। तो मैं सोचती हूँ कि कहाँ से अंदर से वो निकालते होंगे उस रिदम को, उस सुर ताल को। एंड कई पुराने गाने भी आप लोग सुनो तो दे टच योर हार्ट, राइट? दे आर सो क्लोज टू इट। आजकल भी अच्छा है वो ढिंचिक है, लेकिन वो ऊपर लेवल का ही ढिंचिका तक ही है, वो कई बार दिल तक नहीं पहुंच सकता जो वो जो सुर है, जो ताल है। एंड लेकिन जैसे अभी कह रहे हैं म्यूजिक चल रहा है, every music, yes, every music has it, for every mood there should be music, and I don't have anything against ढिंचिक, मैं खुद भी गाता हूँ और एंजॉय भी करता हूँ उन गानों को गा के, और there is a whole lot of audience that, you know, from the boredom they get on hooked and they get charged with those kind of songs. So music in any form is good. Absolutely. थोड़ा बस like one thing which I would always harp is keeping in the best interest of the society. थोड़े जो unwelcome lyrics होते हैं that should be avoided, but beyond that I think everything क्योंकि is it's a family environment, yes, you want to keep it more yes, like that. sure. नहीं ढिंचिका तो मुझे पता, मेरे जैसे डांसर्स क्या करेंगे भाई? जी, बिल्कुल। अगर हमारे ढिंचिका नहीं चले, गा तो सकते नहीं हम लोग, तो हमें तो हमारा ढिंचिका चाहिए होता है, और पार्टी तो वहीं से तभी तो पार्टी शुरू होती है हमारी नहीं तो उसके बगैर काम नहीं चलता। और वही जैसे अब रफ़ी जी के गाने कह रहे हैं, तो हम लोग छोटे होते जाते होते ड्राइव पे, माय डैड सिंग्स, राइट? सो ही सिंग्स, तो तब टेप चलती थी, कभी टेप अटक जाती थी, उस टाइम पे तो था नहीं इतना MP3 एंड सिस्टम, तो वो 3-3 घंटे की ड्राइव होनी एक जगह से तीसरे घंटे, उन्होंने 3 घंटे कंटिन्यूअस गाने एक के बाद, और उनको लिरिक्स याद थे। ही रिमेंबर्स, ही टिल डेट रिमेंबर्स द लिरिक्स, और उन्होंने 3 घंटे एक गाने के बाद एक गाने के बाद एक गाना सुनाते रहना, और हमने बड़े मजे से साथ साथ में सुनते रहना। I would add on to that because Taluja Saab is a member of our family, our group, and you know he's an encyclopedia when it comes to Rafi Saab songs, and you know he's so passionate and he's such a good voice, and even at this age he has so much of passion, and you know he comes on our shows whenever possible, whenever he's in town, so he makes sure that he's there for our meetups and stuff like that. He loves, तभी मुझे वो शौक है ना, वहीं से मुझे कोई भी सिंगर हो, so I can understand and I can connect to that, right? So अच्छा, आपकी रियल एस्टेट मार्केट है और आपकी जो फाइनेंशियल है, तो उसमें सिंगिंग कैसे फिट इन? कभी आपने कोई उसका कोई कनेक्शन हुआ है? बेसिकली मैं IT फील्ड में था 16-17 साल, एंड पार्ट टाइम रियल एस्टेट इन डेवलपमेंट मैं करता रहता था, और कुछ ना कुछ किसी हर आदमी को कोई पैशन, कोई हॉबी चाहिए विच एंकर्स हिम टू द ग्राउंड। That's right, that's right. मैं समझता हूँ कि मैं सुनने वाला ज़्यादा हूँ, और हम जैसे सुनकार अगर नहीं हो तो फिर फनकार करेंगे क्या? सुनकार, I like that. तो मैं सुनता बहुत ज़्यादा हूँ, अच्छी म्यूज़िक आई अप्रिशिएट इट वेरी मच। और पंकज भाई ने तलुजा जी का जिक्र किया, मैं उसी लाइन पे बोलना चाह रहा था कि इंसान अगर अच्छा हो, उसका दिल अच्छा हो, तो म्यूज़िक उसकी अच्छी निकलती है। तलुजा जी इज़ अ वेरी काइंड सोल, और वैसे ही हर, अगर आप आदमी को देखें, रवि साहब को लें या किशोर दा को लें आप, तो ये लोग, इन लोग के दिल अच्छे थे, अच्छे लोग थे। तो जब तक आप हम्बल नहीं हो, अच्छे आदमी नहीं बोलो, इंसान नहीं बोलो, तो आपकी फिर म्यूज़िक भी अच्छी नहीं होगी। तो आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कलाकार, जैसा एक पेड़ अगर हो, दरख्त हो, तो उसके ऊपर अगर फल भरे हुए हो तो वो झुक जाता है। जी जी जी। वरना फिर तना हुआ रहता है दरख्त, तो फिर वो यू नेवर गेट एनीवेयर। वो इसका मतलब वो इट्स नॉट अ वेरी व्हाट इज अ फ्रूट बेयरिंग ट्री। इफ यू आर इन द लॉन्ग रन, तो मैं यही हर एक को बोलता हूँ कि इफ यू आर इन द लॉन्ग रन, then be humble, be grounded, and that is only how you will get ahead in life. In everything. तो अगर आदमी अच्छा हो, इंसान अच्छा हो, स्पिरिचुअल रूह आपकी अच्छी हो, तो फिर आपकी गायकी भी अच्छी होती है, आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा होती हैं। बिल्कुल। देखो यही जब मैं ये डिस्कस करती हूँ ना, अपने भेजा फ्राई मोमेंट आ गया या कोई भी जैसे भी कोई डिस्कशंस वगैरह कर दी है, वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट मैं थोड़े दिन पहले मैंने ये स्टोरी सुनाई थी कि लंदन में प्रिंस जॉर्ज जो हैं, जो 3 साल के, उन्होंने एक पिक्चर दिखा रहे हैं जो एक डॉग को आइसक्रीम खिलाने लगे हैं, तो
एक बंदे ने कहा मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक प्रिंस जॉर्ज को फायर नहीं कर दिया जाता, ये नहीं हो जाता। हम लोग सोशल मीडिया पे बैठ तो गए, एक इमेज के पीछे हैं, एक यूजर नेम के पीछे छुपे हुए हैं, और जो दे धनादन मन में आता है अपनी ओपिनियन दे रहे हो और बोल रहे होते हैं। कोई जानवर ने बच्चे को खा लिया, पेरेंट्स कितनी पेन से गुजरे हैं, और लोग उस मदर को, उस फादर को जज कर रहे हैं। You know what, when you speak, before you speak, think, जैसे आपने कहा ना, little bit of humility, a little bit of, ये सोचें कि अपने आप को उस पोजीशन में डालकर, और ये नहीं सोचो कि मैं ऐसी मदर, क्योंकि रब नहीं जानता, आप नहीं जानते भगवान आप कब किस मोमेंट पे कहाँ पे कैसे हो सकते हो, राइट। एंड मैं तो स्पिरिचुअल ये पढ़ती हूँ कि आई विश मैं लोगों को, इट इज़ एन एक्चुअल साइंस कि जो आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो वो ही आपके पास वापस आनी है, और आप अगर किसी को चांटे मार रहे हो तो चांटा ही वापस आना है। सॉरी टू से, आपके हाथ में पत्थर मार रहे हो तो पत्थर ही वापस आना है, फूल नहीं आएंगे, राइट। लेकिन इस साइंस ये जो घूमती जा रही है, ये लोगों को मालूम नहीं है। वो लगता है कि अब सोशल मीडिया, सबके पास एक ओपिनियन आ गई है, यू नो, आई हैव अ माइक्रोफोन, देने दे मुझे ओपिनियन दो, ज़रूर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोच के, और मेरे वर्ड्स के साथ अगर किसी का हेल्प नहीं हो रही तो डैमेज ना हो। बिल्कुल, यू नो व्हाट आई मीन, इफ वी कैन डू दैट, आई विश द वर्ल्ड, एंड मैं तो अपने शो पे, और मैं तो हमेशा कहती रहूंगी, आई विल नॉट स्टॉप फ्रॉम सेइंग दिस, समथिंग लाइक दैट। एंड कोई गीत Sure. आपको पता था मैं वापस आ रही इनफैक्ट उस बात पे मेरे को एक बहुत ही लाइट मोमेंट याद आ रहा है। आप जैसे अपना आपका भेजा फ्राई मोमेंट होता है तो जब स्टॉक मार्केट्स गिरते और मेरा भेजा फ्राई होता है तो मैं भी बाहर जाके कुछ ऐसा गाना गाता हूँ कि दैट कीप्स ऑन चीयरिंग मी फ्रॉम इनसाइड एंड दैट गिव्स मी द मोटिवेशन टू गो बैक एंड सिट इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप अगेन। बट एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है कि एक बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर हैं बैक इन इंडिया, और ही बिकेम वेरी पॉपुलर, ही स्टार्टेड अर्निंग सम मनी, उनके स्टेज शोज वगैरह काफ़ी हो रहे थे। सो वहाँ पे होता है कि जनरली द गैंगस्टर्स गेट behind you and they start demanding extortion monies and stuff like that। तो उनको एक कॉल आया रात को 2 बजे, बोला कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ XYZ जगह से और तुम 5 करोड़ रुपए दो। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, ये वो। बोला नहीं हमको मालूम है तुम शोज कर रहे हो। बोला कि नहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ। बोला कि नहीं अच्छा अगर पैसे नहीं दे सकते हो जाना, हमको एक गाना सुनाओ, हमारी पार्टी चल रही है और हम ये सेल फोन को उन्होंने बोला कि हम स्पीकर पर रखते हैं और सब लोग माइक के सामने तुम्हारा गाना सुनेंगे पार्टी में, सारे गैंगस्टर्स इकट्ठे। बोला मैं रात को 2:30 बजे उठ के वॉशरूम के अंदर जाके बंद किया और गाना गा रहा हूँ, तुम दिल की धड़कन में, और मेरी बीवी बाहर दरवाजा धड़ाम धड़ाम मार रही। बोले तुम किसको गाना सुना रहे हो रात को 2:30 बजे, कौन है ये, कौन आ गई तुम्हारी जिंदगी में, इसको गाना सुना रहे हो बैठ के। तो सिंगर्स के साथ कई बार ऐसे भी वाकये होते हैं। तो दैट्स यू नो ऑन अ लाइटर नोट। बट इसका मतलब उनकी पिटाई तो हुई, सिर्फ बाहर गैंगस्टर से नहीं, बीवी से हो गई। अब वो ना इधर कुछ बोल सकते हैं ना बाहर बीवी बोल सकते हैं, अब वो बाहर निकल के आए भाई भाई भाई। सो देन वो तो मानेंगे नहीं कि कौन सा भाई है जिसको ये गाना सुना कौन है वहाँ, और गाओ वहाँ से बोल रहे हैं बंद मत करो, शुरू चालू रहो। तो आई कैन इमेजिन कि व्हाट ही मस्ट हैव गॉन थ्रू। तो ये गीत भी आपको इसके वर्डिंग्स याद है, तुम दिल की धड़कन? जी, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स अगेन। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। थैंक यू। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू डू हैव अ वंडरफुल वॉइस। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट गुड। दैट। रियाज जी, कोई एक आधा आप भी? जी, पानी वानी तो है नहीं, थोड़ी सी पानी कैसे गिराने की आवाज कर सकते हैं? आपने एक पुराने गानों की बात की थी, मैं एक पुराने गाने की 1-2 लाइन सुनाता हूँ आपको। जी। मेलोडी उस जमाने में जो थी, आजकल भी आ रही है गानों में, लेकिन उस जमाने के बोल भी अच्छे होते थे, शायरी भी अच्छी होती थी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं,
तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। तन्हाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे गाने सुन सुन के हमारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो अब देखना कविता जी को हम लोगों ने आज मोटिवेट किया है कि नहीं किया है। दो लाइन कविता जी के इतने अच्छे सिंगर की डॉटर हैं तो डेफिनेटली दो लाइनें तो बनती हैं आपके नाम से। इस मामले में मेरे डैड बेचारे बड़े उदास हो जाते हैं। उनका सैड सॉन्ग की तुम की तारे बज जाती है सारे टॉइंग टॉइंग टॉइंग, क्योंकि वो कहते हैं यार मैं और मेरा भाई में से कहते तुम में से एक तो गा लेता। लेकिन मैं जैसे अब ये है फील्ड टीवी का, ये मैं स्टेज पे जा सकती हूँ, डांस वांस करा लो और बहुत सी एक्टिंग करवा लो, सब कर लूंगी। एक गाना है ऐसा फील्ड कि जब मैं और मेरा भाई गाते हैं तो हमारे पास स्पेशल स्किल है, लोग गायब हो जाते हैं। आप अपने पसंद का गाना बोलिए, पंकज भाई का साथ दीजिए सर, बस एक लाइन में। उनके गाने की सुर ताल की ऐसी बैंड बजेगी, पंकज जी बेचारे हमारे जाएंगे। हिंदुस्तान में ये है कि सिंगर सभी होते हैं, सभी होते हैं, बट बेचारे वो मौका ढूंढते हैं कि जब कोई नहीं सुन रहा हो तब हम अपना मुराद पूरी करते हैं। बट अगर आप गुनगुनाते भी हैं तो गुनगुना तो आपके साथ रही थी, अच्छा, आई लव म्यूजिक। म्यूजिक मुझे दिन रात, जैसे आप कह रहे हैं ना आप सुनकार, तो मैं भी बहुत बड़ी सुनकार हूँ। आई एंजॉय म्यूजिक, मेरे को दिन रात उसके बगैर मैं गाड़ी नहीं चला सकती, उसके बगैर कुकिंग के टाइम पे कभी वो तो खैर साथ में कभी कभी शब्द भी लगा लिए, जब दिल करता है वो भजन वो लगा लिए, और साथ में गाना अगर कुछ भी हो तो आई एंजॉय, बिकॉज आई थिंक म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड हर मोमेंट पे वो होता है। पर मैं आपके साथ पीछे से गुनगुना के वो तबला वबला बजा सकती हूँ। नथिंग ऑफ दैट। पर ऐसी कोई आपके साथ फनी इंसिडेंट्स आपके साथ भी हुए, समथिंग ऑन द स्टेज और ऑफ स्टेज और समथिंग लाइक दैट, आपके जब आप इवेंट्स वगैरह कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट हैपेंड? रियाज, यू वांट टू टेक दैट? होता है कई बार, सिंगर्स अच्छे गायक होते हैं, अच्छे गाने वाले होते हैं, लेकिन वो अभी तक तो घर में गा रहे थे, माइक पकड़ना नहीं आता है, माइक पे बराबर गाना नहीं आता है। तो कई लोग होते हैं जो माइक हिमेश रेशमैया स्टाइल में पकड़ेंगे या माइक 3 फीट दूर पकड़ेंगे। तो अब इवेंट चल रहा है, अब उनको जाके कैसे बोलें कि क्या है, पीछे से इशारा करने के भाई माइक करीब लो, थोड़ा आवाज़ तुम्हारी आ नहीं रही है, तो वो समझता है कि और दूर करो। तो वो चक्कर में जो है कई बार फनी इंसिडेंट्स होते हैं कि बेचारा पूरा गाना खत्म हुआ, पता चला उसकी आवाज़ तो किसी को आई नहीं, पहुंची नहीं आवाज़। तो ऐसे तो कई हादसे होते हैं, लेकिन इट्स ऑल इन गुड स्पिरिट। It is because audience, because I have been there, because I have been the master of ceremonies of lot of events, right? Singing तो होती नहीं है, तो उधर अब उनको यही सिचुएशन होती है कि तुम कह रहे थोड़ा you know like मैं उसे कह रही हूँ कि आप आगे करें, तो वो ना वो उन्होंने डांस की मूवमेंट ही शुरू कर दी, तो मैंने कहा डांस नहीं करो भाई, माइक्रोफोन आगे करो। तो मैंने कहा मैं इनको कैसे समझाऊं कि आगे करने की जरूरत है, तो वो भी परेशान हो गए कि मुझे डांस करने को क्यों कह रही है। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये रिक्वायरमेंट है, तो वो साथ साथ में हिलने लग पड़े और यूं कर रहे थे। तो मेरे वो बड़े पास से जाके फिर मेरे थोड़ा सा लोगों के साथ बात करते करते, वेव करते हुए, मॉडलिंग करते हुए मैं आगे गई और यूं माइक्रोफोन आगे करके निकल गई। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली नुकसान ही होता है कि लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो आप चाहते नहीं हो कि लोगों के किसी के गीत से कोई डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन अगर किसी को सुन नहीं रहा है तो यू हैव टू वे द प्रोज एंड कॉन्स एंड सी राइट अकॉर्डिंगली। मेरे साथ पर्सनली एक चीज हमेशा होती है, जिन दिनों में बहुत एक्टिव था स्टेज पे जी, मैं स्टेज पे जाने से पहले भगवान को प्रार्थना करता था, मैं कोई ऐसा ऑडियंस मत भेजना कि मेरे को ऐसा गाना रिक्वेस्ट करे जो मेरे को नहीं आता हो। बिकॉज हर फंक्शन में ऐसा 3-4 रिक्वेस्ट आती है, वो गाने मेरे को नहीं आते थे। तो अब वो सोचते कि अगर मेरी वाइफ गुजराती तो मैं भी गुजराती में कुछ गाऊँ, और मेरे को गुजराती नहीं आता, गाना तो कम से कम नहीं आता है, बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो कई बार ऐसे फनी इंस्टेंसेस बहुत होते हैं।
तो देखता हूँ मैंने कि मुंह छुपाते रहता हूँ, मैंने कोई ऐसा कोई गाना नहीं गाया, कोई अचानक बुजुर्ग आते हैं, अच्छा झनक झनक तोरी बाजे पायलिया सुना दो। तो अब मेरे ग्रैंडफादर्स ने शायद वो गाने सुने होंगे, तो मेरी उतनी रेंज नहीं, मैं उस उन चीज़ों को छू भी सकूँ, तो सो दैट्स ऑन अ फनी नोट। मैं इतनी पुरानी इमारत नहीं हूँ। जी 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 बिल्कुल। उस टाइम के गाने तो इट इज हार्ड टू सिंग समटाइम्स, Absolutely, yes. या और ये भी होता है कि कई बार ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है, तुम लोग ये भी प्रे करते हो कि जो डिस्ट्रैक्टिंग चप्पड़ चप्पड़ वाली पार्टी वो पीछे बैठी हो, क्योंकि कई बार बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग सी पार्टी होती है, वो थोड़े बार इधर को थोड़े बार इधर को बुला रहे होते हैं, आप बात कर रहे होते हैं, तो तुम्हें ध्यान होता है कि मैं पहले स्टेज से उतर के आंटी को कहूँ, आंटी जी पहले आप बात कर लो। पहले आपने जिस को बुलाना है, जो करना है वो आप कर लो, हम अनाउंसमेंट बाद में कर लेंगे। होता है कई बार ऐसे कि लोग जो है खाने पीने में मसरूफ हैं, बेचारा खड़ा है कलाकार ऊपर, इतनी मेहनत करके आया है, लेकिन वो दे आर नॉट वेरी कंसिडरेट। लेकिन यही है कि कलाकार, किसी ने बहुत खूब कहा है कि कलाकार की कला अपने आप को अगर दिखाना है तो फिर ऐसे सब हालात के अंदर वो गाना गाते रहे। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े बड़े शोज में भी जाओ तो लोग हूट भी करते हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। अगर आपका कंसंट्रेशन तो हटना नहीं चाहिए। वो कला का आपका एक कसौटी पे उतरने का जो होता है वो करना ही पड़ता है वो कई बार। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि एक तरफ से एक तो हम वी हैव टू मेक श्योर कि एज ऑडियंस कि हम लोग ऐसा ना करें। आई ऑलवेज फील कि कोई परफॉर्म भी कर रहा है, बट कोई भी डांस कोई कर रहे होते हैं, जो कोई भी है, कोई गाना गा रहा है, पीछे से आप इतनी आवाज कर रहे हैं, व्हाई बी सो डिसरिस्पेक्टफुल। पर ऑन द अदर साइड दिस इज अ टेस्ट, यू नो, क्योंकि बड़े से बड़े ऐश्वर्या राय का शी गेन्ड वेट एंड कितना क्रिटिसिज्म शी हैड टू फेस, सो देयर इज ऑलवेज good and bad to every situation. So if you're strong, you have to face it and you have to move forward. You know what I mean? आपने जैसा कहा कि डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया इट्स बिकम सो इजी। Oh, I mean it's a tool which you can use to mar anyone's life or create anyone's life. Absolutely. तो ऐसा बहुत होता है कि किसी का भी नाम बदनाम करना हो तो इट्स वेरी इजी, बिहाइंड द यूजर नेम जस्ट डू व्हाटएवर, नाम बदनाम करो, मलाइन करो, जितना कर सकते हो आप। Exactly. On that line I would definitely want to take this opportunity कि हमारा IMKG Sama is available on Facebook for everyone. कोई भी सर्च करेंगे Facebook पे IMKG Sama and they will get our page. And we have got our own website imkg.ca, imkgsama.com. Indian Music Karaoke Group, South Asian Music Association, the acronym stands for that. अच्छा, And now we are a registered organization. जी, तो इसीलिए उसको शॉर्ट कर दिया है समा, तो IMKG Sama है। तो इंशाल्लाह आगे चलते हुए आप लोगों का साथ रहा, ऑडियंस का साथ रहा, तो फिर विल ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एंड म्यूजिक ऐसी चीज़ है, किसी का इजारा नहीं है, ये किसी की मिल्कियत नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने स्टार्ट किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ये तो सदियों से चले आ रहा है। द सॉन्ग सेलेस्टियल इज बीइंग प्लेड थ्रू आउट द यूनिवर्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड इट्स अ वेरी सूदिंग कामिंग इफेक्ट। इनफैक्ट हमारे बहुत ही अजीज दोस्त नवनीत भाई, वो अपने छोटे से बेटे विहान को सुलाने के लिए वो लोरियां सुनाती हैं हर बार। अब ये हालत हो गई कि वो विहान मियाँ भी 1 साल के हुए हैं और वो माइक पकड़ के बाबा के साथ गाना गाते हैं। Oh, that is so cute. That is adorable. So IMKG ये तो टेस्ट हो गया हमारे। पूरा अल्फाबेट आ गया है। पूरा अल्फाबेट आ गया यहाँ पे। IMKG आपके Sama। बच्चों को इसके साथ ABCD भी आ जाएगी अगर इनकी एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे तो। बट जो इन्होंने कहा है IMKG Sama, तो वो ये फेसबुक पे भी है, और इनका जो इवेंट है समा है सुहाना, विच इज़ ऑन August 7th at 3:30 फेयरव्यू लाइब्रेरी थिएटर। उसको जाके चेक करें। द टिकट्स आर वेरी नॉमिनल $10। द इंफॉर्मेशन देयर। और एक बार आप अपना फ़ोन नंबर भी प्लीज़ बता दें ताकि वो कॉल कर सके। मेरा नंबर है 416-587-4607। मेरा नंबर है 416-305-1070। और हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों का दिल लुभाने की। We've got a beautiful spread of exotic songs coming up. It's not a very regular $5.99 buffet. We've got a beautiful exotic spread there available. हर किस्म के ऑडियंस के लिए हम केटर करेंगे। And we have got a great lineup of singers. And we appreciate and really thankful to all our supporters and singers
who are with us along on this journey. Yep. I hope you have an excellent a blast on the show, and I hope this show is a mega success, and you keep doing that every year. Thank you And very much. thank you for coming But to the before show. we wind up, at least you have not sung a song. I would like you to shake a leg here and there. and आप आपको गीत जिला दे तो उसके साथ साथ मैं मूव कर दूंगी जी। मैं टप्पे शप्पे गा दे मैं उधर नाल कर दूंगी Okay, sure, why not? You know, this is a song that I'll be इसके साथ performing ending as well कर on देंगे the show event. तू हो गई 1 2 2 हाय कुड़िए what to do अरे हो गई मुंडे दी तू पतंगा वर्गी तू एਵੇਂ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਅਰੇ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤੂੰ ਹਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਿਟ ਪਿਟ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਮ ਕੁਈਨ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੂੰ ਕੈਂਟੀ ਬਿਗ ਬੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਰਖਮ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਠੁਮਕਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ See you next week. You are watching Channel Y. Channel Y. Why?